In today's class, we will discuss about the cervical fascia, that is the fascia of neck region. And आपने upper limb में पढ़ा है brachial plexus, वैसे ही similarly यहाँ पे plexus होता है, that is the cervical plexus. So we will discuss about the cervical fascia and plexus. कोई भी fascia क्या होता है? Fascia is a fibrous connective tissue which will bind together the various structures of the body. So fascia is the fibrous connective tissue which will bind the different structures of our body. ठीक है, आपको पता है हर जगह कितनी fascias होती हैं? There are two fascias, the superficial and the deep fascia. So basically we will discuss about the deep fascia of neck, that is known as fascia collis, है ना? Deep fascia of neck. So superficial fascia, you all know that it lies just beneath the skin. It is subcutaneous and it is present just below the skin. Whereas deep fascia is present around the muscle, the blood vessels and different organs, है ना? उसके आसपास जो fascia होगा, that is the deep fascia. The skin of the neck कैसी होती है? It is thin, है ना? Just skin के नीचे जो layer मिलेगी, that is the superficial fascia, which is subcutaneous fascia. और this fascia consists of numerous important structures. सबसे पहला, so what is superficial fascia of neck? It is a thin, loose areolar tissue का एक layer है, which is present just below the skin. These are the important contents present in the superficial fascia of neck. The first one is the platysma. Platysma is a muscle which is present in the superficial fascia. It is the developmentally जब देखोगे तो it is the derivative of second pharyngeal arch. ठीक है, arches पढ़ाई होगी आपको? नहीं. तो every arch has face का भी आपने पढ़ा होगा कि muscles सब develop कर रही है pharyngeal arch से. वैसे similarly the platysma which is, देखो कोई बाउंड तो है नहीं, अटेंडेंस मैं नहीं लूंगी, पहले ही बता दे रही हूँ. तो इफ यू वांट यू कैन लीव, बट प्लीज इफ यू आर हियर तो बी पेशेंट एंड डोंट टॉक, अदरवाइज मैं बाहर भेज दूंगी. क्योंकि मैं अपना एनर्जी ये बोल करके कि चुप हो जा उसमें वेस्ट नहीं करना चाह रही, तो बार बार नहीं बोलूंगी. So the first content in the superficial fascia is the platysma. Basically superficial fascia मुझे पढ़ाना नहीं है, बट जब आप चैप्टर खोलोगे तो आपको पहले समझ में नहीं आएगा, तो डीप फेशिया क्या पढ़ाओगे? मेरा टॉपिक डायरेक्टली है कि डीप फेशिया पढ़ाना है मुझे, बट येट मैं थोड़ा सा डील कर दे रही हूँ कि जब पढ़ो तो कुछ समझ में तो आए कि क्या पढ़ रहे हो. So these are the numerous contents present in the superficial fascia. The first one is the platysma, which is a muscle which is present in the superficial fascia. ठीक है ना, subcutaneous muscle है, इसको platysma कहते हैं. और दिस प्लेटिस्मा डेवलप फ्रॉम द सेकंड फेरेंजियल आर्च, और जो भी मसल सेकंड फेरेंजियल आर्च से डेवलप होती है, दैट इज सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व, है ना? हर आर्च की अपनी एक नर्व होती है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई इट सप्लाइड फ्रॉम द सर्वाइकल. आपने फेस में पढ़ा होगा फेशियल नर्व की ब्रांचेस, तो इट इज सप्लाइड बाय द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. अपार्ट फ्रॉम इट आपको क्विटेनियस नर्व्स मिलेंगी, सुपरफिशियल वेन, सुपरफिशियल लिम्फ नोड, और बाकी लूज एरियर टिश्यू है तो इन बिटवीन फैट्स मिलेंगे. So these are all the content of superficial cervical fascia. First about the platysma muscle. आपने यहाँ पे भी पढ़ा था, कौन सी हैंड में मसल पड़ी थी जो superficial fascia में था? So this muscle, that is a platysma, it is a remnant of pedunculus, मतलब lower animals में ये मसल प्रेजेंट थी, तो इसी का रेमिनेंट एक पार्ट रह गया है. तो दैट इज, तो इसको भी कभी बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि प्लेटिस्मा किसका रेमिनेंट है. तो इट इज अ रेमिनेंट ऑफ पेनिनकुलर कार्नोसिस, ठीक है? और एज इट इज डेवलप फ्रॉम द सेकंड फेरेंजियल आर्चेस. यही सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नहीं सुनते, यही सारे एमसीक्यूज में रहते हैं. तो इट इज द रेमिनेंट ऑफ पेनिनकुलर कार्नोसिस एज इट इज डेवलप फ्रॉम द सेकंड फेरेंजियल आर्चेस. इट दैट्स व्हाई इट इज सप्लाइड बाय द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. दिस प्लेटिस्मा, ठीक है, तो स्किन में ही सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होगा. तो इसका ओरिजिन कहाँ होता है? इसका ओरिजिन यहाँ से डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर के ऊपर जो फेशिया लगा हुआ है, और जो पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर फेशिया है वहां से डेवलप करता है, एज वेल एज फ्रॉम द स्किन ऑफ दिस रीजन. So this fascia arises from the skin and the deep fascia covering the upper part of the pectoralis major as well as the anterior part of deltoid muscle. ठीक है ना? तो it arises from here, है ना? Deep fascia of the pectoralis major के ऊपर जो fascia है, from here come
एज वेल एज फ्रॉम द डेल्टॉइड और वहां की स्किन से भी. देन आफ्टर इट ओरिजिन इट रन्स अपवर्ड एंड मीडियली, दोनों साइड अपवर्ड और मीडियली ये रन करेगा इन द नेक. तो दैट्स वाई जो ये प्लैटिज्मा है इसके 3 तरह के फाइबर होंगे. कुछ फाइबर एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर फाइबर. द एंटीरियर फाइबर ऑफ बोथ द साइड वो मिड लाइन में आकर के फ्यूज करता है एक दूसरे के साथ. ठीक है, इट विल फ्यूज एंड इट गेट इंसर्टेड ओवर द सेंटर. मैंडिबल का जो सिम्फाइसिस मेंटाई वाला पोर्शन है यहाँ पर आकर के दोनों एक दूसरे के साथ ये करके यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है. जो आपका इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर फाइबर है दैट विल गेट अटैच ओवर द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल. देयर इज फ्यू ऑफ द पोस्टीरियर फाइबर ये एंगल ऑफ मैंडिबल के ऊपर रन कर करके एंड गेट, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा राइजोरियस मसल, पढ़ा है ना, उस राइजोरियस मसल का पार्ट बनाता है एंड इट विल गेट इंसर्टेड ओवर द एंगल ऑफ द माउथ. तो देयर दीज आर द 3 टाइप ऑफ फाइबर्स ऑफ प्लैटिज्मा. ठीक है, एंटीरियर वाला, ठीक है, आफ्टर इट ओरिजिन इट विल रन अपवर्ड एंड मीडियली. द एंटीरियर फाइबर वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं सिम्फाइसिस मेंटाई पे आकर के लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल पे इंसर्ट हो जाएंगे. मिड वाले लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल पे. पोस्टीरियर फाइबर आल्सो गेट इंसर्टेड ओवर द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल. फ्यू फाइबर्स स्वीप over the angle of mandible and it get inserted over the side of angle of mouth. ठीक है, राइजोरियस बना करके. So it get, so this is how the platysma muscle get origin and as well as insertion. Nerve supply मैंने पहले आपको बता दी, cervical branch of facial nerve. अब इसका action then the muscle ऊपर से pull होगी, है ना, तो ये क्या करेगा कि आपके हमारे नेक में क्या करता है, वर्टिकल रिंकल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो वेन है उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से इंक्रीज वेरस रिटर्न हो पाता है. ठीक है, वेरस व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स लोअर साइड, ये लोअर से जब पुल होगी तो क्या होगा, इट विल टर्न द एंगल ऑफ द माउथ डाउनवर्ड एंड लेटरली, जो कि आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा हॉरर और टेरर के टाइम में, तो वो फीचर कॉज करता है. ठीक है ना. तो दीज आर द 2 मेन एक्शन ऑफ प्लैटिज्मा. ऊपर से किया तो वर्टिकल रिंकल प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स है, वेसल्स है, उसमें प्रेशर नहीं हुआ, तो इंक्रीज वेनस रिटर्न. क्योंकि एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट विद इन द सुपरफिशियल फेशिया, तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, तो इंक्रीज वेनस रिटर्न आराम से हो पाता है. और दूसरा व्हेन डाउनवर्ड होगा तो वो लेटरल एंगल ऑफ द माउथ को नीचे तरफ पुल करेगा, तो हॉरर और टेरर का आपका एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लैटिज्मा. नाउ there are few cutaneous nerves. So basically there are 4 cutaneous nerves which are present in the superficial fascia. These are all the branches of the cervical plexus. अभी cervical plexus क्लास में मैं पढ़ाऊंगी. तो ये चारों ब्रांच कहाँ की है, ये सबको पता है. ये मसल कौन सी है, जब अपना साइड करते हो तो ये मसल जो फील होती है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड. तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसका जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ ही से आपको चारों, जब आप डिसेक्शन करोगे तो ऑल द 4 नर्व्स इमर्जेस फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है ना, इसको पॉइंट ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ही से चारों नर्व निकल रही है. ऑल द 4 क्यूटेनियस नर्व विच इज द ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस. तो वो ऑल व्हाट आर द नर्व्स, लेसर ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड द सुप्राक्लैविकुलर, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है. मीडियल, लेटरल, इंटरमीडिएट, सुप्राक्लैविकुलर नर्व अपर लिम्ब में पढ़ा है आपने, है ना. तो दीज आर ऑल द 4 नर्व्स. व्हाट आर दीज नर्व्स, द फर्स्ट वन इज विच रन बिहाइंड द ऑरिकल, दिस इज द लेसर ऑसिपिटल. वन जो एंगल ऑफ मैंडिबल के पास जाएगा, ग्रेटर ऑरिकल. एक जो नेक में एंटीरियरली मिड लाइन में जाएगा, है ना, और हॉरिजॉन्टली रन करेगा, दैट इज द ट्रांसवर्स. इसीलिए नाम ही है कि ट्रांसवर्सली रन कर रहा है. ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व एंड द सुप्राक्लैविकुलर नर्व which will run over the clavicle. So these are the 3, medial, lateral and intermediate. So all these are the branches of cervical plexus and these nerves are present in the superficial fascia. कहाँ से emerge होती है, मतलब starting point कहाँ होगा, है ना, posterior border of sternocleidomastoid, उसका जो mid point होगा वहाँ से emerge करती है. एक पीछे जाएगी, एक आगे यहाँ पे जाएगी, एक anteriorly जाएगी transverse और एक नीचे जाएगी तीनों supraclavicular. So these are all the nerves present in the superficial fascia. प्रॉपर डिसेक्शन हो तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं, सारी सर्वाइकल के चारों क्यूटेनियस ब्रांचेस, यू विल गेट इट. जैसे आपको अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में तो नहीं दिख रहे थे क्यूटेनियस ब्रांचेस उतनी डिटेल, बट यहाँ पे दिखते हैं, यू विल गेट इट. नाउ देयर आर 2 वेन्स. मैंने क्या बताया, सुपरफिशियल वेन्स प्रेजेंट है. तो देयर आर 2 सुपरफिशियल वेन्स प्रेजेंट. वन इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड द एंटीरियर जुगुलर वेन. दीज आर द 2 वेन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेशिया. ठीक है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन आपने फेशियल वेन में पढ़ा होगा. फेशियल वेन कहाँ से, यहाँ से आ रही है ना, बाय द फ्यूजन ऑफ किस वेन से बनती है, सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल.
है ना, सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल के फ्यूजन से ये आपकी फेशियल वेन है ना, दिस इज द फेशियल वेन। और यहाँ पे आपको जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेन्स है दैट आर द सुपरफिशियल, टेम्पोरल एंड द मैक्सिलरी वेन, है ना। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फाइनली आकर के किसमें डिवाइड हो जाता है, मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल, टेम्पोरल, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स है जो कि टेम्पोरल रीजन को ड्रेन करके लाती है ऊपर से, तो इसको सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, और ये मैक्सिलरी रीजन को लेकर के आती है जो ड्रेन करके, तो उसको मैक्सिलरी वेन कहते हैं। ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाती है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाती है। रेट्रोमैंडिबुलर डिवाइड इनटू टू पार्ट, एन एंटीरियर डिवीजन एंड अ पोस्टीरियर डिवीजन। दिस एंटीरियर डिवीजन फ्यूज विद द फेशियल वेन एंड फॉर्म्स अ कॉमन फेशियल वेन। सबको पता है इतना तो, है ना, कि रेट्रोमैंडिबुलर वेन कैसे बनी, सुपरफिशियल, टेम्पोरल और मैक्सिलरी के फ्यूजन से बनी। फाइनली विद इन द पैरेटिक ग्लैंड ये डिवाइड हो गई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में। एंटीरियर डिवीजन ज्वाइन विद द फेशियल वेन फॉर्म्स अ कॉमन फेशियल वेन, वेयरएज इसका जो पोस्टीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर पार्ट मतलब ऑसिपिटल रीजन से एक वेन ड्रेन करके आती है जिसको का नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, ईयर के पीछे रन करती है, तो दैट्स व्हाई द पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। These two veins join, the posterior auricular vein as well as the posterior division of retromandibular vein. Both these veins join to form the external jugular vein, and this external jugular vein drain into the subclavian vein. ठीक है, posterior triangle में आपको फिर से बताया जाएगा external jugular vein, तो अभी बस समझ में आ गया ना कि how the external jugular vein has been formed. It is formed by the fusion of posterior auricular vein as well as the posterior division of retromandibular vein. How the retromandibular vein is formed? It is formed by the fusion of superficial, temporal and maxillary vein. Its anterior division joined with the facial vein forms the common facial vein, है ना। So this is the external jugular vein which drains into the subclavian vein. वैसे ही anteriorly मिड लाइन में, मिड के साइड में देखोगे तो यहाँ जो लोअर पोर्शन है मेंटल रीजन का, यहाँ पे बहुत सारी माइन्यूट वेन होती है, these joins to form the anterior jugular vein, ठीक है ना। ये बहुत सारी वेन्स होती हैं छोटी छोटी, ज्वाइन करके दोनों साइड में क्या बनाती है, एंटीरियर जुगुलर वेन। तो एंटीरियर जुगुलर वेन इज द अनदर वेन, और एंटीरियर जुगुलर वेन, ये सुप्रास्टर्नल नॉच सबको पता है, स्टर्नम के ऊपर जो नॉच है उसको क्या बोलते हैं, सुप्रास्टर्नल नॉच। इन द सुप्रास्टर्नल नॉच दोनों जो एंटीरियर जुगुलर वेन ज्वाइन करके क्या बनाती है, जुगुलर एक आर्च बनाती है जिसको क्या बोलते हैं हम, जुगुलर वेनस आर्च, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक टू वेन्स विच इज प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेशिया, वन इज कॉल्ड द एंटीरियर जुगुलर वेन एंड वन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। और फाइनली जो एंटीरियर जुगुलर वेन है ना वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन में ही ओपन करती है, ठीक है। बट मिड लाइन दोनों फ्यूज करके एक जुगुलर वेनस आर्च बनाएगी विच इज प्रेजेंट इन द सुप्रास्टर्नल नॉच। नाउ कुछ लिम्फ नोड भी है, तो लिम्फ नोड क्या होता है कि जो जंक्शन है हेड का और नेक का, दिस इज द जंक्शन ऑफ हेड एंड नेक, है ना, सबको पता है। यहाँ पे सिम्फाइसिस मेंटेन लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, ये एक्सटर्नल ओकास्टिक मियाटिस, मोस्टोइड प्रोसेस, सुपीरियर निकल लाइन एंड एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, ये क्या है, दिस इज द जंक्शन ऑफ, उसके ऊपर हेड उसके नीचे नेक, ठीक है ना। तो इस पे क्या होता है, एक सर्कुलर वे में सारी लिम्फ नोड्स अरेंज्ड होती है, और ये लिम्फ नोड, दीज लिम्फ नोड आर प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेशिया। तो फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, सबसे आगे यहाँ पे सबमेंटल रीजन में सबमेंटल लिम्फ नोड, मैंडिबल के नीचे सबमैंडिबुलर ऑरिकल के आगे प्री ऑरिकुलर या पैरोटिड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड भी यहीं प्रेजेंट है, तो दैट वाइट इज नोन एज प्री ऑरिकुलर और द पैरोटिड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। ईयर के पीछे पोस्ट ऑरिकुलर, और पीछे सबसे यहाँ पे ऑसिपिटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। तो ये पूरा एक सर्कल बनाती है दैट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ हेड एंड नेक। तो वो भी आपको कहाँ मिलेगा, दैट इज प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेशिया। अपार्ट फ्रॉम इट आपको फैट मिलेगा। तो दीज आर ऑल द कंटेंट्स दैट यू विल गेट इन द सुपरफिशियल फेशिया। नाउ विल कम टू द डीप फेशिया। डीप फेशिया ऑफ द नेक जो होता है ना, वो क्या होता है, पूरे नेक को बाहर से सराउंड करती है। एक डीप फेशिया हैज मल्टीपल लेयर इन द नेक। द डीप फेशिया इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लेयर। जो सबसे पहली लेयर है दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया विच विल सराउंड द नेक इन अ फॉर्म ऑफ कॉलर। तो इसीलिए इसको हम लोग फेशिया कॉलिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेशिया कॉलिस, है ना। कि द डीप फेशिया सबको पता है कि जो मसल वेसल्स के अराउंड फेशिया होगी, तो दैट इज कॉल्ड द डीप फेशिया, ठीक है, जस्ट बीनीथ अंडर द superficial fascia, and in the neck region it is divided into different इसका modification है different. So what are the different modification of deep fascia in the neck? The first one is investing layer of deep cervical fascia. The second one is the prevertebral, pretracheal fascia, carotid sheath
एंड बक्कोफेरेंजियल फेशिया। तो कितनी तरह की डीप फेशिया हो गई नेक में? देयर आर 5 डीप फेशियाज इन द नेक, ठीक है। सबसे पहले जो इन्वेस्टिंग है वो पूरे नेक को एक कॉलर की तरह ऐसा सराउंड करके रखती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। बाकी सब डीप फेशिया जो है वो क्या होती है, वो किसी ना किसी वेसल्स को या कोई स्ट्रक्चर को, ऑर्गन को कवर करके रखी हुई है। जैसे प्री ट्रेकिया, ट्रैकिया के सामने होगा। प्री वर्टिब्रल, वर्टिब्रा के सामने होगा। कैरेटिड शीट, कैरेटिड शीट विल जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है नेक के, वेसल्स है, दैट इज द कॉमन कैरेटिड, द इंटरनल कैरेटिड आर्टरी, द जुगुलर वेन एंड द वेगस नर्व, उनको सराउंड करके रखती है, तो उसको हम कैरेटिड शीट कहते हैं। और जो फैरिंग्स के आसपास फेशिया होती है उसको बक्कोफेरेंजियल कहते हैं। तो दीज आर द 5 मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया ऑफ नेक, ठीक है। डीप फेशिया का काम क्या है कि सारे स्ट्रक्चर को होल्ड करके प्लेस पे रखने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट न्यूरोवास्कुलर बंडल को भी वो सेपरेट करते हैं, जिसकी वजह से एक का कंप्रेशन दूसरे पे ना पड़े, क्योंकि नेक में आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ट्रैकिया है, ईसोफेगस है, बाकी आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, तो इनके सारे स्ट्रक्चर्स के बीच में एक न्यूरोवास्कुलर जो बंडल्स है उनके बीच में बस एक प्लेन बना देता है, तो जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर का प्रेशर दूसरे पे नहीं पड़ता है। तो और दूसरा क्योंकि फेशियल प्लेन बनाता है तो इन्फेक्शन भी स्प्रेड होने से प्रिवेंट करता है। तो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ द डीप फेशिया। तो इन दिस इमेज जो देखो, ये सबसे आगे जो आपको दिख रही है या ये पीछे जो दिख रहा है, दिस इज द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है नेक को। बाकी आपको ट्रेकिया के आगे दिस इज द प्री ट्रेकियल फेशिया, वैसे ही वर्टिब्रीज है, ये वर्टिब्री के आगे इट इज द प्री वर्टिब्रल फेशिया। फैरिंग्स के पीछे यहाँ पे बक्कोफेरेंजियल फेशिया, ठीक है ना। और जो यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है, बट जो कॉमन कैरोटिड वेसल्स जो हैं उनको जो सराउंड करते रखता है उसको कैरोटिड शीट कहते हैं। हाँ, तो दीज आर द 5 डिफरेंट मॉडिफिकेशन कह लो, लेयर्स कह लो ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। इन्वेस्टिंग लेयर, प्री ट्रेकियल, प्री वर्टिब्रल, कैरोटिड एंड द बक्कोफेरेंजियल फेशिया। इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैरोटिड शीट भी पूछते हैं और इन्वेस्टिंग लेयर भी पूछते हैं, है ना। तो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट जिसपे शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए। अभी आपको इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाया गया है, तो जो बाहर में ये जो फेशिया, इसको ये दिस इज द स्किन दिखाया गया है सबके बाद। उसके बाद ये है आपका सुपरफिशियल फेशिया, यहाँ जो ग्रीन में दिखाया गया है दैट इज द इन्वेस्टिंग लेयर, जो कि पूरे चारों तरफ आगे से पीछे सराउंड करके रखा है। ट्राकिया के आगे प्री ट्रेकियल, वर्टिब्री के आगे प्री वर्टिब्रल, और फैरिंग्स के पीछे बक्कोफेरेंजियल फेशिया, और यहाँ दोनों साइड कैरोटिड जो कंटेंट है वो पास कर रहा है, तो इनको जो सराउंड करके रख रहा है उसको हम कैरोटिड शीट कहते हैं। अब now one by one we will discuss all these fascia. First about the investing layer of deep cervical fascia. It will encircle the whole neck in a form of collar के form में encircle करता है, and it lies just deep to the platysma, और जो आपका superficial fascia है उसके deep में present होगा। अच्छा, इसके लिए बहुत important है, rule of 2 कहते हैं, because the investing layer of deep cervical fascia में हर चीज 2 है, 2 मसल को अपने अंदर इनक्लोज करता है, 2 ग्लैंड को अपने अंदर इनक्लोज करता है, 2 मसल के लिए एक बेल्ट वो बनाता है, एक स्लिंग बनाता है जिससे उसकी टेंडन हैंग होती है, ठीक है ना। तो यू हैव टू रिमेम्बर द रूल ऑफ 2 मसल मैंने क्या क्या बताया, सब 2 मसल को इनक्लोज करता है, ठीक है, 2 ग्लैंड को इनक्लोज करता है। तो मसल कौन सी है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड एज वेल एज ट्रेपेजियस, है ना। दीज आर द 2 मसल्स, ये 2 ग्लैंड्स को इनक्लोज करता है, दैट इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड पैरेटिड ग्लैंड, ठीक है। 2 मसल के लिए एक स्लिंग बनाता है, तो दैट इज द ओमोहाइड मसल एंड द डाइगैस्ट्रिक मसल, ठीक है, इनके लिए ये स्लिंग बनाता है। उसको क्यों ये कर रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? उस शीट पे बैठ करके ना बस टाइम पास कर ली। तो फर्स्ट आई विल टेल यू कि कैसे कैसे अटैच्ड होता है, ठीक है।
तो मैंने क्या बताया कि पूरा कॉलर के फॉर्म में है, तो ऊपर और नीचे कहीं अटैचमेंट होगा, तो यहाँ ऊपर पहले अटैचमेंट समझो। ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, उसके बाद सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, मैस्टोइड प्रोसेस आपने देखा है वहाँ, उसके बाद एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर, लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल और सिम्फाइसिस मेंटाई। तो ऊपर अटैचमेंट जो हेड एंड नेक का जंक्शन है वहां पे अटैच हो गया। बिलो अटैचमेंट यहाँ पे होगा, तो बिलो अटैचमेंट कहाँ होगा, पीछे से चलोगे तो पीछे चलोगे तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला देखा है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, देन एक्रोमियम प्रोसेस, देन आपका क्लैविकल, फिर क्लैविकल यहाँ पे आकर के जुगुलर नॉच। तो दिस इज द लोअर अटैचमेंट ऑफ द इन्वेस्टिंग लेयर। तो पूरा क्या हुआ, मिड लाइन और एंटीरियरली दोनों साइड की फेशिया आकर के फ्यूज कर जाती है, तो इट गेट अटैच्ड ओवर द सिम्फाइसिस मेंटाई, हॉइड बोन एंड जुगुलर नॉच। और पीछे सारी जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं उनको जो उनका स्पाइन होता है ना, वो दीज आर कनेक्टेड बाय अ लिगामेंट नोन एज लिगामेंटम न्यूकी। तो उन लिगामेंटम न्यूकी पे और नीचे C7 के वर्टिब्रे स्पाइन पे आकर के अटैच होता है। तो दिस इज ऑल द अटैचमेंट ऑफ दिस इन्वेस्टिंग लेयर। आई होप सबको समझ में आए। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, मैस्टोइड प्रोसेस, लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, सिम्फाइसिस मेंटाई। यहाँ नीचे से चलोगे स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियम प्रोसेस, क्लैविकल, जुगुलर नॉच। ठीक है, तो ऊपर नीचे अटैच हो गया, यहाँ मिड लाइन और पीछे भी अटैच है। तो मिड लाइन सिम्फाइसिस मेंटाई, यहाँ सबको पता है हॉइड बोन है, और यहाँ जुगुलर नॉच, और दोनों साइड का बीच में फ्यूज हो जाता है। पोस्टीरियर अटैचमेंट लिगामेंटम न्यूकी से स्टार्ट होगा, ठीक है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से स्टार्ट होगा, फिर वहां से लिगामेंटम न्यूकी सारी स्पाइन को, सारी सर्वाइकल वर्टिब्री के स्पाइन को जो लिगामेंट अटैच करता है उसको लिगामेंटम न्यूकी कहते हैं, है ना उसको। और ये कहाँ तक आएगा, C7 के स्पाइन तक आएगा। तो दिस इज ऑल द अटैचमेंट, जो कि आपको ग्रीन कलर में वही दिखाया गया है ना। ये दिस इज द अबव अटैचमेंट एंड यहाँ पे लोअर अटैचमेंट होगा। मिड लाइन में यहाँ अटैच होगा, पोस्टीरियरली यहाँ पे होगा लिगामेंटम न्यूकी पे। हाँ, अब आपको मैं रोल ऑफ 2 बता रही थी। तो फर्स्ट क्या बताया मैंने कि 2 ग्लैंड को ये इनक्लोज करेगी, दैट इज पैरेटिक ग्लैंड एंड द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अब समझो कि यहाँ से नेक पे ये फेशिया है, यहाँ सबको पता है लोकेशन, दिस इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड दिस इज पैरेटिक ग्लैंड। यहाँ से फेशिया आई, जहाँ पे जब वो सबमैंडिबुलर रीजन में पहुंचेगी तो इट स्प्लिट, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई, एक सुपरफिशियल रन की ग्लैंड के ऊपर से और लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल पे जाके अटैच हो गई, एक डीप गई और मैंडिबल के पोस्टीरियर सरफेस पे देखोगे तो एक माइलोहाइड लाइन है इनर सरफेस पे, एक लाइन होती है जो कि इनर सरफेस ऑफ द मैंडिबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक को सब मैंडिबुलर कहते हैं, एक को सबलिंगुअल, क्योंकि दोनों ग्लैंड वहां लॉन्च करती है। ऊपर वाले को सबलिंगुअल कहते हैं क्योंकि टंग कहाँ है आपका, ऊपर है, तो ऊपर वाले को सबलिंगुअल क्योंकि वहां पे सबलिंगुअल ग्लैंड आ रहा है, और नीचे सब मैंडिबुलर है। तो उन दोनों के बीच में एक लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं, माइलोहाइड लाइन। तो डीप वाला जो जाता है वो माइलोहाइड पे लाइन पे अटैच हो जाता है। समझ में आया सबको। नेक्स्ट से फेशिया आई, स्प्लिट कर गई मैंडिबल सब मैंडिबुलर ग्लैंड के नीचे, ऊपर वाला तो यहाँ अटैच हो गई, पीछे वाला माइलोहाइड लाइन पे। बाकी जो पोस्टीरियर है वो फिर पीछे एक्सटेंड की अब वो आगे यहाँ फेस पे रन की, अगेन पैरेटिड के पास ये अगेन डिवाइड कर गई, अगेन डिवाइड करके पैरेटिड को इनक्लोज करेगी। ठीक है ना, एक सुपरफिशियल और एक डीप, और ये फर्दर ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर के ये अटैच हो जाएगी जो आपका एक्सटर्नल ये टिम्पैनिक प्लेट है और जो स्टेलॉइड प्रोसेस है टेम्पोरल बोन का, वहां पे जाकर के अटैच हो जाएगी। तो आपको इमेज में यह दिख रहा है। और जो आगे वाला लेयर है जो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ पैरेटिड को इनक्लोज करेगी, वो ज़ाइगोमैटिक आर्च के लोअर बॉर्डर पे अटैच हो जाएगी। समझ में आया। तो 2 बार स्प्लिट की 2 ग्लैंड को इनक्लोज करने के लिए, एक बार सब मैंडिबुलर को, तो सब मैंडिबुलर में याद रखना है एक लोअर बॉर्डर पे और एक माइलोहाइड लाइन पे, फिर अगेन फ्यूज करके कहाँ जाकर के जो स्प्लिट की, पैरेटिड पे। तो पैरेटिड का ऊपर वाला तो ये सबको पता है ज़ाइगोमैटिक आर्च है, उसके लोअर बॉर्डर पे, और जो डीप वाला है वो जाकर के टिम्पैनिक प्लेट देखना जाकर के, अगर जिन्होंने नहीं देखा हो, और स्टेलॉइड प्रोसेस, एक पतला सा एक प्रोजेक्शन है टेम्पोरल बोन पे नीचे की तरफ, तो उसको स्टेलॉइड प्रोसेस कहते हैं, जो कि आपको इमेज में भी यहाँ दिख रहा है। तो दिस इज द स्टेलॉइड प्रोसेस एंड दिस इज द टिम्पैनिक बेस, टिम्पैनिक प्लेट, और यहाँ पे एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेसेज, तो उस पर चला जाता है। तो एक ये लेयर हो गई और एक ये लेयर हो गई। तो इससे 2 मॉडिफिकेशन होता है। जो एंटीरियर वाला होता है, एंटीरियर लेयर होता है इन्वेस्टिंग लेयर का, वो वहाँ पे थिक हो जाता है और पैरेटिड फेशिया बनाता है, जिसका दूसरा नाम है पैरेटिडोमेसेट्रिक फेशिया भी। ठीक है, तो इसका एक नाम याद रखना है कि जो आगे वाला लेयर है जो पैरेटिड ग्लैंड के सुपरफिशियल सरफेस को कवर किया, दैट बिकम थिक एंड फॉर्म अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब उसी का मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेटिड फेशिया और द पैरेटिडोमेसेट्रिक फेशिया। क्योंकि आगे में यहाँ पे कौन सी मसल है, मैसेटर, और पैरेटिड के बीच में है, इसीलिए नाम क्या दिया गया, पैरेटिडोमेसेट्रिक फेशिया।
जो डीप गई वो स्टेलॉइड प्रोसेस तक जा रही है। तो फ्रॉम एंगल ऑफ मैंडिबल टिल द स्टेलॉइड प्रोसेस, ये फेशिया एक थिकेंड होकर के एक लिगामेंट बना देती है जिसको नाम दिया गया स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो जब पैरेटिड को इनक्लोज की तो दो मॉडिफिकेशन हुआ इसका, ठीक है। तो ये भी दो चीज हुआ, एक पैरेटिडोमेसेंट्रिक फेशिया बनाया, एंटीरियर वाली लेयर, सुपीरियर वाली लेयर, और जो डीप वाली लेयर है इन बिटवीन द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड द स्टेलॉइड प्रोसेस इट बिकम थिकेंड। थिक हो गया, फेशिया थिक होता है तभी लिगामेंट बनाता है, सबको पता है। तो ये थिक होकर के लिगामेंट बनाया, तो कौन सा लिगामेंट बनाया? स्टेलोमैंडिबुलर लिगामेंट, क्या कि मैंडिबल से स्टेलॉइड प्रोसेस तक है। तो इमेज में आपको दिख रहा है दिस इज द लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, उस डीप वाली लेयर, और सुपरफिशियल वाली लेयर को हमने क्या बोला? पैरेटिडोमेसेंट्रिक फेशिया। So this is how it will enclose the two glands. Now ये क्या करती है? It will enclose two spaces also. ठीक है, दो जगह ये ऊपर गई, ठीक है ना, वर्टिकल डिस्पोजिशन है, ऊपर गई, दो बार स्प्लिट की, दो ग्लैंड को एनक्लोज की। When it will come down, it will again split and encloses two spaces, एक ये स्टर्नम के ऊपर और एक क्लाविकल के ऊपर। तो इसको क्या बोलोगे? सुप्रास्टर्नल स्पेस ऑफ बर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्होंने नाम दिया गया उनके नाम से बर्न आया है, सुप्रास्टर्नल स्पेस। नहीं याद रहा है बर्न तो सुप्रास्टर्नल स्पेस, और एक क्लाविकल के ऊपर दैट इज कॉल्ड द सुप्राक्लैविकुलर स्पेस। तो इट विल इनक्लोज टू स्पेस। तो जब इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल नीचे आएगी अटैचमेंट के लिए तो अगेन दो बार डिवाइड होगी, दो लेयर में स्प्लिट होगी। एक मैनिब्रियम के ऊपर, दो बार मैनिब्रियम के ऊपर यहाँ आई, इट विल स्प्लिट इनटू टू। एक जो मैनिब्रियम का एंटीरियर मार्जिन है वहां पे अटैच हो गई, और एक पोस्टीरियर मार्जिन है वहां पे अटैच हो गई। तो दोनों के बीच में एक स्पेस बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रास्टर्नल स्पेस ऑफ बर्न। वैसे ही जब क्लैविकल के मिडिल थर्ड वाले पोर्शन में आएगी ना, इट विल स्प्लिट इनटू टू, and one attached to the anterior margin of middle third of the clavicle and one attached to the posterior margin, और एक स्पेस बना देगी जिसको हम क्या बोलेंगे? सुप्राक्लैविकुलर स्पेस। तो इट विल इनक्लोज टू स्पेस। अब दोनों के कंटेंट याद रखने हैं। जो सुप्राक्लैविकुलर स्पेस है उसमें क्या लाइक करता है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड सुप्राक्लैविकुलर नर्व, ठीक है। इसका दो कंटेंट है, क्या क्या है? यहाँ पे सुप्राक्लैविकुलर नर्व रन कर रही थी तो वो स्पेस में होगी, और एक्सटर्नल जुगुलर वेन होगी। और जो ये वाला स्पेस है यहाँ पे आपको फोर्थ स्ट्रक्चर मिलेगा। एक तो जो स्टर्नल हेड है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का वो मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया? दोनों एंटीरियर जुगुलर वेन फ्यूज करके क्या बनाई? जुगुलर वेनस आर्च बनाई। तो आपको दूसरा क्या मिलेगा? जुगुलर वेनस आर्च मिलेगा। और क्या मिलेगा? आपको याद है कि दो क्लैविकल के मीडियल बॉर्डर को एक लिगामेंट ज्वाइन करती है, क्या कहते हैं? इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट। तो वो कंटेंट मिलेगा, इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट, और कुछ सुप्रास्टर्नल लिम्फ नोड्स मिलेंगे। तो these are the four contents present in the suprasternal space of burn. तो यहाँ चार और यहाँ दो कंटेंट है। यहाँ पे एक्सटर्नल जुगुलर वेन है और सुप्राक्लैविकुलर नर्व है, और यहाँ पे क्या हो गई आपकी? स्टर्नल हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, जुगुलर वेनस आर्च which is caused by the fusion of the two anterior jugular vein, ठीक है, सुप्रास्टर्नल लिम्फ नोड और इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट, ठीक है। कितना भी बोलो ना तुम, मतलब अब और कैसे पढ़ाऊं मैं, मुझे नहीं समझ में आता है कि तुम्हारा ध्यान ना जाए, या फिर तुम बैठ के सोच के बैठते हो कि मुझे तो नहीं सुनना है, तो फिर ठीक है। तो दो दो हो गया, और दो क्या करता है कि दो मसल की बेली के लिए स्लिंग बनाता है। तो यहाँ पे ना एक मसल होती है जिसको हम डायगेस्टिक मसल कहते हैं, उसकी एक एंटीरियर बेली होती है और एक पोस्टीरियर बेली होती है। उसके लिए एक स्लिंग बनाता है जो कि किससे अटैच करता है? हॉइड बोन से अटैच करता है। दूसरा आपने ओमोहाइड का स्लिंग पढ़ा होगा, स्कैपुला पे पढ़ा था ना, इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड। तो इसकी एक सुपीरियर बेली भी होती है जो कि हॉइड बोन से अराइज करती है, तो उसके लिए भी स्लिंग बनाता है। तो इट विल फॉर्म द स्लिंग फॉर टू मसल। तो इस इमेज में देखो आपको, दिस इज द डायगेस्टिक मसल, दिस इज द एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक एंड दिस इज द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक। दोनों के लिए एक फेशियल स्लिंग बनाता है जो कि इसको कहाँ से अटैच करता है? हॉइड बोन से अटैच करता है। वेयर दूसरा सुपीरियर बेली अराइज करती है हॉइड बोन से, और इंफीरियर बेली सबको पता है कि स्कैपुला के सुपीरियर बॉर्डर से अराइज कर रही थी, याद है ना, सुप्रा स्कैपुलर नॉच के जस्ट पास में, ठीक है ना। तो वहां से अराइज करके ये ऊपर रन करती है, और बीच में दोनों का एक टेंडन आता है, इंटरमीडिएट टेंडन आता है इंफीरियर बेली। ये इंटरमीडिएट टेंडन क्लैविकल से
इंक्रोच करता है, और वो भी किसका मॉडिफिकेशन है, ये बेली, ये फेशियल स्लिंग कौन बनाता है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। तो इट विल फॉर्म द फेशियल स्लिंग फॉर 2 मसल, 1 फॉर द डाइगेस्ट्रिक। तो जो दोनों के बीच, दोनों मतलब जैसे डाइगेस्ट्रिक में एक एंटीरियर है और एक पोस्टीरियर है, तो दोनों के बीच का जो टेंडन होगा कनेक्टिंग, उसके लिए स्लिंग बनाएगी। और यहाँ क्या है, सुपीरियर बेली और इंफीरियर बेली ओमोहॉइड, उसके लिए भी स्लिंग बनाएगी। जो डाइगेस्ट्रिक का स्लिंग है वो हाइड बोन पे अटैच होगा, और जो ओमोहॉइड का स्लिंग है वो आपका क्लेविकल। ठीक है, अब क्या है, ये तो मैंने वर्टिकल डिस्पोजिशन बताया कि ऊपर गई तो ग्लैंड को इनक्लोज की और पैरेटिड को इनक्लोज की, तो 2 स्ट्रक्चर्स बनाई, दैट इज पैरेटिडोमेसेट्रिक फेशिया एंड द टैलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, नीचे आई तो 2 स्पेस को इनक्लोज की एज वेल एज 2 फेशियल स्लिंग्स बनाई। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मतलब आगे से अब फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर जब ये जाएगी तो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्पोजिशन कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे गई थी तो उसको हम वर्टिकल डिस्पोजिशन कहते हैं। तो जब यहाँ से जाएगी तो इट विल इनक्लोज 2 मसल। सबसे पहले आपको पता है ये वाली मसल क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। वैसे ही यहाँ पे बैक में मसल है ट्रेपेजियस, सबने पढ़ा था अपर लिम्ब में ट्रेपेजियस। तो फर्स्ट इट विल स्लिप टू इनक्लोज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, देन अगेन फ्यूज, देन अगेन स्प्लिट टू इनक्लोज द trapezius muscle. So that's why it will divide, it will split to include 2 muscles. As well as जब ये split करती है तो ये रूफ बनाती है 2 ट्रायंगल के। अभी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि ट्रायंगल में 2 नेक है, सॉरी नेक में 2 ट्रायंगल है, एक स्टर्नोक्लीडो के आगे और एक स्टर्नोक्लीडो के पीछे। इस आगे वाले ट्रायंगल को एंटीरियर ट्रायंगल बोलते हैं, और स्टर्नोक्लीडो और ट्रेपेजियस के बीच में जो ये पीछे वाला ट्रायंगल, इसको हम पोस्टीरियर ट्रायंगल कहते हैं। तो जब ये डिवाइड करती है और स्प्लिट करती है मसल को इनक्लोज करने के लिए और फिर ज्वाइन करती है, तो इट विल फॉर्म द रूफ ऑफ द 2 ट्रायंगल। समझ में आ गया? जब आप हॉरिजॉन्टली इसका डिस्पोजिशन देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये रन करेगी तो एंटीरियर ट्रायंगल का रूफ बनाएगी, फिर स्प्लिट करके स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को इनक्लोज करेगी, फिर ज्वाइन करके पोस्टीरियर ट्रायंगल का रूफ बनाएगी, फिर स्प्लिट करके ट्रेपेजियस को इनक्लोज करेगी। ठीक है ना? तो हॉरिजॉन्टल डिस्पोजिशन में 2 मसल को इनक्लोज करेगी और 2 ट्रायंगल का रूफ बनाएगी। तो इस इमेज में आपको यही दिख रहा है, यहाँ पे एंटीरियर ट्रायंगल का रूफ बनाई, स्टर्नोक्लीडो को स्प्लिट करके इनक्लोज की, यहाँ ज्वाइन करके पोस्टीरियर ट्रायंगल का रूफ बनाई, एंड देन अगेन ट्रेपेजियस को इनक्लोज की। तो दीज आर ऑल द रूल्स ऑफ 2। होप सबको समझ में आ गया हो। तो एकदम एग्जाम में आना है तो आपको ये डायग्राम्स और ये सारे लिखने हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया एग्जाम में पूछा जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ अप्लाइड है, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया कि जो पैरेटिड के ऊपर फेशिया है वो बहुत थिक है, टफ है। तो अगर मम्स के केस में जब पैरेटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो क्या होगा, क्योंकि इनइलास्टिक है, फेशिया से बना हुआ है, तो पेनफुल स्वेलिंग होती है, क्योंकि उसको एक्सपैंड करने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो इट विल लीड टू अ वेरी पेनफुल स्वेलिंग इन केस ऑफ मम। ठीक है, तो वो किस वजह से हुआ, क्योंकि उसका जो सुपरफिशियल पैरेटिडोमेसेट्रिक फेशिया वो इसी से बना है। तो दैट इज नॉन इलास्टिक, तो वो एक्सपैंड नहीं करेगा, तो बहुत ज्यादा पेन होगा। ठीक है, जब ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होगा। दूसरा, जब हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड को रिसेक्शन करते हैं तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को सेपरेट जब करते हैं तो आराम से करना है, क्योंकि वो उसके पीछे क्या है, टैलोमैंडिबुलर लिगामेंट को जब उससे सेपरेट करोगे ना तो आर्टरी के डैमेज होने का चांस होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, तो उस टाइम ध्यान रखना है। तो ध्यान कब रखेगा बंदा, जब उसको पता होगा कि जो इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट है जो पैरेटिड ग्लैंड के पीछे जा रहा है वो क्या बना रहा है, टैलोमैंडिबुलर लिगामेंट बना रहा है। तो ड्यूरिंग द सबमैंडिबुलर ग्लैंड का जब हम रिसेक्शन कर रहे हैं, जब सर्जरी कर रहे हैं, तो पहले उसको सेपरेट करना है, अदरवाइज इट विल लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, और दूसरा कि मैंने क्या बताया था आपको कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो सुपरफिशियल फेशिया में है ना, तो उसका जो वॉल है, जैसे आपने स्कैल्प में पढ़ा है कि वॉल वेन की जो वॉल्व है वो काफी एडहेयर है ना, तो अगर कभी कट लग गया तो वो उसको कोलैप्स नहीं होने देता, तो बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है। तो सिमिलरली यहाँ है, और ब्लीडिंग के साथ साथ क्या करेगा, एयर को तक कर लेता है, तो इट विल लीड टू एयर इन्वॉल्वमेंट। तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट अप्लाइड रिलेटेड टू इट, है ना, क्योंकि अगर उसको फेशिया से खींच के रखेगा तो वो क्लोज नहीं होगा, तो क्लोज नहीं होगा तो एयर सक इन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या करता है, एयर इम्बोलिज्म कॉज कर देता है। अब नाउ द सेकेंड, तुम बाहर चले जाओ, बेटर है, जो भी बाहर खड़ा हुआ है बेटर इंटरैक्ट कर पाओगे।
कोई था क्या यहाँ पे? Now the second layer is the prevertebral fascia, pretracheal fascia, which is the fascia present in the front as well as side of trachea. ठीक है ना, इसीलिए कहा गया प्री का मतलब ही होता है आगे, ट्रेकिया के आगे और साइड में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस फेशिया इज नोन एज प्रीट्रेकियल फेशिया. तो ये आपको यहाँ ट्रेकिया दिख रहा है, इसके आगे जो ये फेशिया है दैट इज कॉल्ड द प्रीट्रेकियल फेशिया. जब ये साइड में जाता है तो इट विल फ्यूज विद द एंटीरियर वॉल, और एज वेल आप कह सकते हो कि जो कैरोटिड शीट की एंटीरियर वॉल है ना, दैट इज फॉर्म बाय द प्रीवर्टिब्रल फेशिया. ठीक है ना, तो दिख रहा है आपको ये प्रीवर्टिब्रल फेशिया है, एंटीरियरली इट फॉर्म द एंटीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड शीट एंड देन इट विल मर्ज विद द फेशिया ऑफ विच इनक्लोजेस द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्पोजिशन कैसे हुआ? पहले तो ट्रेकिया को फ्रंट और साइड में इनक्लोज किया, और साइड गया तो कैरोटिड शीट के एंटीरियरली रन किया, और साइड में जाके जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को इनक्लोज किया हुआ है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ दी सर्वाइकल, उसके साथ फ्यूज कर दिया. तो दिस इज द आपका क्या हो गया, इसका ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्पोजिशन हो गया. अब ये जब वर्टिकली रन करता है तो फेशिया ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा. तो व्हेन इट विल अपार्ट फ्रॉम लास्ट टू, जो लास्ट आप 3 बैठे हुए हो ना, या तो यहाँ आकर के बैठ जाओ या तो बाहर चले जाओ, कंटिन्यूअस बातें कर रहे हो. समझ में नहीं आया? मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, इधर आओ नहीं तो बाहर जाओ, डिसाइड कर लो क्या करना है. हाँ, तो उससे भी आगे जो बैठे हैं ना, तुम भी आ जाओ. उसको सजेस्ट कर रहे तो तुम ही चले जाओ बाहर, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें ऐसे भी पढ़ना नहीं है. उठ के आओ सबके सब, नहीं तो पढ़ा लिया मैंने, पढ़ लिया तुमने. मैंने सबको बोला मूव करने के लिए. आप क्या सोचते हैं, आप उन दोनों में नहीं, आप नहीं है वहां. यार क्यों मतलब अननेसेसरी का एनर्जी वेस्ट होता है. भाई मैं एक एक करके नहीं बोलूंगी कि तुम आओ तुम आओ, तुम कहीं भी बैठो बट चुप होकर के बैठा करो, मुझे कोई मैटर नहीं है, तुम लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पे बैठ करके भी तुम नहीं पढ़ने वाले हो. इट्स नॉट पॉसिबल कि तुमको किसी को जबरदस्ती कोई पढ़ा सके. है ना, तो अपार्ट फ्रॉम इट ये ट्रैकिया को आगे में कवर तो करता है, उसके अलावा ये थायराइड ग्लैंड को ना, पूरे थायराइड ग्लैंड को स्प्लिट करके इनक्लोज करता है. और थायराइड कोई भी ग्लैंड को इनक्लोज करता है ना, तो ये क्योंकि ये ग्लैंड को इनक्लोज करता है तो इट विल फॉर्म द फर्स्ट कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड. ठीक है ना, तो जब वर्टिकल डिस्पोजिशन में इट विल, ट्रैकिया की जस्ट पीछे है आपका ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, तो इट विल स्प्लिट टू इनक्लोज द ग्लैंड, और जब स्प्लिट करके इनक्लोज करेगा ग्लैंड को तो क्या बनाएगा, फर्स्ट कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड बनाएगा. ठीक है ना, ट्रू कैप्सूल कैसे बनता है किसी भी ग्लैंड का, उसी का अपना फाइब्रस कंडेंसेशन होता है ग्लैंड का, तो वो ट्रू कैप्सूल बनाता है. और ये क्योंकि ये बाहर से आया है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट कैप्सूल. तो दिस इन्वेस्टिंग लेयर इट विल इनक्लोज द होल थायराइड ग्लैंड एंड फॉर्म्स द फर्स्ट कैप्सूल ऑफ दी थायराइड ग्लैंड. जब थायराइड ग्लैंड पढ़ोगे तो उसमें 2 कैप्सूल पढ़ोगे, 2 कैप्सूल तो वो खुद बनाता है और फर्स्ट कैप्सूल इन्वेस्टिंग लेयर से आती है. तो इट विल इनक्लोज द थायराइड ग्लैंड, और कहाँ कहाँ अटैच होता है, इट विल अटैच, थायराइड जब कार्टिलेज पढ़ोगे लैरिंक्स पे, तो थायराइड कार्टिलेज पे एक ऑब्लिक लाइन होता है, तो इट विल गेट अटैच ओवर द ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज
as well as it get attached over the cricoid cartilage. तो थायराइड ग्लैंड और क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच में जो फेशिया है वो थिकेंड होकर के लिगामेंट ऑफ बेरी बनाती है. क्या बनाती है? लिगामेंट ऑफ बेरी. ठीक है. बाकी आपको ट्रैकिया के तो है ही, ठीक है ना. तो इट विल मूव अपवर्ड. ठीक है. स्प्लिट टू इनक्लोज द थायराइड ग्लैंड. अबव it will attach over the oblique line of thyroid gland, thyroid cartilage. It will also get attached to the cricoid cartilage where it become thickened to form the ligament of Berry between the cricoid cartilage and the thyroid gland. थायराइड कार्टिलेज के ऊपर जाता है तो ये कहाँ तक अटैच होता है? हॉइड बोन पे जाके अटैच होके एंड हो जाता है. और नीचे अप टू द एपेक्स ऑफ हार्ट, मतलब फाइब्रस पेरिकार्डियम पे आकर के अटैच होकर के एंड हो जाता है. तो वर्टिकल डिस्पोजिशन कहाँ तक है? ऊपर थायराइड ग्लैंड हाइड बोन तक है, और नीचे वो आ जाता है, थॉरेक्स में आ जाता है, और फाइब्रस पेरिकार्डियम के पे आकर के एंड कर जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल डिस्पोजिशन ऑफ द प्री ट्रेकियल फेशिया. और हॉरिजॉन्टल में क्या था कि लेटरली मूव किया, कैरोटिड शीट का एंटीरियर वॉल बनाया, और जो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड की फेशिया थी उसके ऊपर जाकर के एंड कर दिया. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्री ट्रेकियल फेशिया. इसका क्योंकि ये ट्रेकिया ये क्या करता है कि आपके स्वेलिंग के टाइम में, क्योंकि ट्रेकिया से अटैच्ड है ना, तो एक स्लिपरी मूवमेंट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द स्वेलिंग. ठीक है. दूसरी बात कि ये हॉइड बोन, थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज पे भी अटैच्ड है. तो ये क्या करता है, जब ये मूव करते हैं, ये कार्टिलेजेस मूव करते हैं, तो साथ साथ थायराइड ग्लैंड भी मूव करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिग्लूटिनेशन. ठीक है. स्वेलिंग के टाइम में ये भी साथ साथ मूव करेगा. जब लैरिंग्स मूव करेगा, ये सारे किसके पार्ट है? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स. तो जब लैरिंग्स मूव करेगा डिग्लूटिनेशन के टाइम, तो ये भी मूव करते हैं. ठीक है. थायराइड ग्लैंड ऑल्सो पोस्टीरियरली जो प्री ट्रेकियल फेशिया है ना, वो बहुत थिन है, तो कोई भी स्वेलिंग होती है ना, वो पोस्टीरियरली एक्सटेंड करती है. तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्री ट्रेकियल फेशिया इज वेरी वीक. तो इसीलिए अगर कोई भी थायराइड का स्वेलिंग होगा तो वो आगे, क्योंकि आगे तो फर्म है, तो वो आगे ना एक्सटेंड करके कहाँ एक्सटेंड करता है? पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है. ठीक है ना. और क्योंकि ये सुपीरियर मीडियस्टिनम में भी जा रहा है, तो इन्फेक्शन ट्रिकल करके या पस का कलेक्शन होगा तो वो ट्रिकल करके वहां तक जा सकते हैं. ठीक है ना. तो दिस इज ऑल द अप्लाइड रिलेटेड टू दिस फेशिया. नाउ द प्री वर्टिब्रल फेशिया. प्री वर्टिब्रल इज द फेशिया विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रीज. ठीक है ना. वर्टिब्री के आगे जो फेशिया होगा, दैट इज ये वाला. दिस इज कॉल्ड द प्री वर्टिब्रल फेशिया, जो कि वर्टिब्री के आगे है. ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फेशिया होता है विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द प्री वर्टिब्रल मसल. जितनी भी प्री वर्टिब्रल मसल है, दैट इज क्लेनिस एंटीरियर, मीडियस, लिवेटस, स्कैपुली, इन सब के आगे इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्री जो कवर करके फेशिया रखता है, दैट इज कॉल्ड द प्री वर्टिब्रल फेशिया. एंड दिस, जब आप पोस्टीरियर ट्रायंगल पढ़ोगे तो अभी मैंने क्या बताया था, इन्वेस्टिंग लेयर क्या बना रहा था? रूफ बना रहा था पोस्टीरियर ट्रायंगल और इंटीरियर ट्रायंगल का, दोनों का. बट प्री वर्टिब्रल फेशिया फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल. ठीक है ना. क्योंकि ये देखो, इन्वेस्टिंग लेयर कहाँ था? ये आगे था, तो ये रूफ बनाएगा, और ये कहाँ है? ये डीप में है, तो ये क्या बनाएगा? फ्लोर बनाएगा. तो दिस प्री वर्टिब्रल फेशिया फॉर्म द फ्लोर ऑफ द posterior triangle as well as roof of anterior and posterior triangle both. यहाँ पे भी बैठ के बातें कर रहे हो. हंसी कैसे आती है? मतलब शर्म वरम कुछ है नहीं, बस हंसी ही आती है मुझे. तो मेरा रोजा था, तो मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगी सिर्फ पढ़ाने में. बट तुम लोग ना कंपेल करते हो, और मेरे से पढ़ाया नहीं जाता. जब कोई कहीं से आवाज आती है तो मेरा दिमाग पूरा ये हो जाता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ. और तुम लोग एकदम कंपेल करते हो कि मैं बोलूँ ही बोलूँ. इतना तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं. तुम लोग सब बड़े हो, है ना. मैंने पहले ही कह दिया कि प्लीज मैं अपना एनर्जी सिर्फ लेक्चर लेने में लूंगी और बाकी चीजों में नहीं वेस्ट करना चाह रही हूँ. बट येट मैं तो फ्रंट सीट पे भी बैठ के बातें ही करूंगा, कुछ नहीं हो सकता है. ऐसे ही लोग जब बाद में फेल हो जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि टीचर नहीं फेल कर दिया. कोई फेल नहीं करता है, तुम लोग अपने इससे ही होते हो. ठीक है. अब देखो, यहाँ से जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस निकला तो किससे बना था? वेंट्रल रमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स.
वैसे तो सिमिलरली जब ये यहाँ से नर्व्स निकलेगी तो इट विल रन और इट विल टेक दी जो आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस के ट्रंक्स हैं एज वेल एज जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो अपने साथ जब ये मूव करती हैं फ्रॉम दी नेक टू द एक्सिला तो एक शीट ऑफ प्री वर्टेब्रल फेशिया अपने साथ ले जाती हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं क्या चीज से कवर्ड रहता है? एक्सिलरी शीट, है ना, रहता है ना। तो क्योंकि ये यहीं से रन कर रही हैं और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकल रही हैं? यहीं से तो निकल रही है वर्टिब्री के इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। तो जब ये निकलेंगी और साथ जाएंगी और साथ में जो सबक्लेवियन आर्टरी रन करेगी तो इट विल सर्कमसाइज बाय अ फेशिया नोन एज एक्सिलरी शीट। तो ये एक्सिलरी शीट किस चीज से बनी? प्री वर्टिब्रल फेशिया से बनी। बट जो वेन होती है वो आउटसाइड होती है, याद हो अगर तो, है ना। तो जिसकी वजह से इंक्रीज वेनस रिटर्न आराम से होता है, क्योंकि वेन जो होती है वो एक्सिलरी शीट में नहीं होती है, सिर्फ ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड द सबक्लेवियन आर्टरी। तो दिस एक्सिलरी शीट इज फॉर्म बाय द, किस चीज से बनी? इट इज फॉर्म बाय द प्री वर्टिब्रल फेशिया। इस इमेज में यही दिखाया गया है कि इट विल मूव, साथ में लेकर के जाएगा एक प्री वर्टिब्रल का पार्ट, दैट इज कॉल्ड द एक्सिलरी शीट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्पोजिशन। अब वर्टिकली ये जाकर के आपका जो बेस ऑफ द स्कल है उस पे जाकर के अटैच हो जाता है और नीचे ये जो होता है ना आपका जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड थोरैसिक वर्टिब्री है उनके बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं, जैसे आपने अभी क्या पढ़ा है, सर्वाइकल रिब्स के बीच में लिगामेंट क्या था? लिगामेंटम न्यूक्ली। वैसे ही अब नीचे जाओगे थोरैसिक रीजन में तो एंटीरियर और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स होते हैं, तो उस लिगामेंट में जाकर के फ्यूज हो जाता है। समझ में आ गया मेरी बात? ऊपर में जाकर के बेस ऑफ द स्कल पे अटैच्ड हो गया, है ना, और नीचे में आकर के जाकर के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो दो थोरैसिक वर्टिब्री है उसकी जो लिगामेंट है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, जो आपको इस डायग्राम में भी दिखाया गया, इस एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के साथ जाकर के फ्यूज करके एंड कर जाता है। नाउ द नेक्स्ट फेशिया दैट इज द कैरोटिड शीट. इट इज अ ट्यूबुलर कंडेंसेशन which will enclose the important vessels of the neck. ठीक है ना, तो इमेज में आपको यहाँ दिख रहा है दिस इज द कैरोटिड शीट which will enclose the important जितने भी वेसल्स है नेक है उसके चारों तरफ एक ट्यूब की तरह उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग सा शीट बना दिया गया, दैट इज नोन एज द कैरोटिड शीट. तो दिस कैरोटिड शीट एनक्लोज क्या करेगा? देखो कैरोटिड शीट का जो अटैचमेंट होगा ऊपर में, अभी आपने पढ़ा नहीं है बेसालिस, बेसालिस में एक जुगुलर फोरामेन एक कैरोटिड कैनाल होता है, ठीक है ना, नॉर्मल बेसालिस पढ़ोगे तो देयर इज अ कैरोटिड कैनाल एंड अ जुगुलर फोसा, उसकी मार्जिन पे जाकर के ऊपर में अटैच हो जाता है कैरोटिड शीट, क्योंकि उसी के थ्रू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अंदर जा रही है ना, या इंटरनल जुगुलर वेन वहां से वापस आ रही है ना, ब्रेन से ब्रेन लेकर के नीचे आ रही है, तो वो उसी फोरामेन और उसी कैनाल से आ रही है, कैरोटिड कैनाल से आर्टरी आएगी और वो जुगुलर फोसा से वेन बाहर आएगा, तो दैट वहां पे जाकर के उसकी मार्जिन पे ऊपर अटैच हो जाता है. अगर नीचे देखें तो वो कहाँ पे अटैच होगा? आर्च ऑफ ऑर्टा पे. आर्च ऑफ ऑर्टा का वेसल्स में लेयर होती है ट्यूनिकास, जो सबसे बाहर की लेयर होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, है ना, उसी पे जाकर के वो अटैच हो जाता है, ठीक है ना. तो अपर और लोअर अटैचमेंट कैरोटिड शीट का एक ट्यूबुलर ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर जाकर के जुगुलर फोसा और कैरोटिड कैनाल पे अटैच हो गया, और नीचे जाकर के क्योंकि ये कैरोटिड वेसल्स कहाँ से आ रही है? आर्च ऑफ ऑर्टा से आ रही है, तो वो आर्च और ऑर्टा के आउटर लेयर पे जाकर के मर्ज हो गया. और अंदर में इसमें कैरोटिड शीट में रहता क्या है? तो सबसे पहले तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी रहेगी, और आपको पता है कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी जाकर के डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल और इंटरनल. तो एक्सटर्नल तो इस शीट को पियर्स करके बाहर निकल जाती है, दैट इज नॉट विद इन द कैरोटिड शीट. तो कभी भी ये नहीं कहना कि एक्सटर्नल कैरोटिड लाइज विद इन द कैरोटिड शीट. ओनली द कॉमन कैरोटिड एज वेल एज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लाइज विद इन द कैरोटिड शीट. उसके अलावा आपको इंटरनल जुगुलर वेन, आपको इंटरनल जुगुलर वेन और इन दोनों के बीच में पोस्टीरियरली जो 10th क्रेनियल नर्व है दैट इज द वेगस नर्व, वो राइट करती है. तो मीडियली क्या हो गई? आर्टरी हो गई, नीचे की तरफ कॉमन कैरोटिड, ऊपर की तरफ इंटरनल कैरोटिड, क्योंकि ऊपर ही जाकर के कॉमन कैरोटिड डिवाइड होगी, एक्सटर्नल बाहर निकल जाएगी, इंटरनल. और ऐसे भी कहते हैं इंटरनल इज द डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो इसीलिए वो डायरेक्टली उसके अंदर रहेगी. लेटरली इंटरनल जुगुलर वेन है और इन दोनों के बीच में, और पोस्टीरियरली जब आप दोनों को सेपरेट करोगे और पीछे की तरफ देखोगे तो आपको वेगस नर्व मिलेगा, दैट इज द 10th क्रेनियल नर्व. So these are the three contents of the carotid sheet. That is the common carotid artery, internal carotid artery, internal jugular vein, and vagus nerve. Vagus nerve is present in between the two on the posterior aspect. अच्छा, तो अपर पार्ट ऑफ कैरोटिड शीट में देखोगे ना तो आपको 9th, 11th और 12th भी मिलते हैं, ठीक है ना. वो धीरे धीरे सब बाहर निकल आते हैं, बट इनिशियली अपर पार्ट में यू विल
these are also the content, that is the 9th, 11th and 12th nerve. अब ये anterior wall of जो carotid sheet है that is formed by the pretracheal fascia, और जो इसकी posterior wall है वो किससे बनती है? प्रीवर्टिब्रल। मैंने पढ़ाया ना, इन्वेस्टिंग तो बाहर है, उसके अलावा आगे प्रीट्रेकियल थी, पीछे प्रीवर्टिब्रल थी। जब दोनों वर्टिकली डिस्पोज हो रही थी, हॉरिजॉन्टली डिस्पोज हो रही थी, तो एक कैरोटिड के आगे चली गई और एक ये कैरोटिड वेसल्स के पीछे चली गई। तो आगे वाली कैरोटिड शीट में लेयर किसने बना दिया? प्रीट्रेकियल लेयर, और पीछे वाली प्रीवर्टिब्रल। ठीक है, तो दिस कैरोटिड शीट इज फॉर्म एंटीरियरली बाय द प्रीट्रेकियल लेयर एंड पोस्टीरियरली बाय द प्रीवर्टिब्रल लेयर। एंटीरियर वॉल में एक लूप ऑफ नर्व होती है जिसको हम अंसा सर्विकैलिस कहते हैं, वो इम्बेडेड होती है। इम्बेडेड का मतलब समझ में आता है ना सबको, कि एकदम उसी फेशिया के अंदर हो, so that's not on the, it is embedded within the anterior layer of the carotid sheet, so that is called the ansa cervicalis। और अगर इसका पोस्टीरियर लेयर के पीछे देखोगे तो सिंपैथेटिक चेंज होती है ना, वो रन करती है। ठीक है, तो ये इस इमेज में आपको रिलेशन दिखाया गया है कि एंटीरियर वॉल में इम्बेडेड है, इसीलिए इस ग्रीन लेयर के अंदर दिखाया गया। अंसा सर्विकैलिस दैट इज अ लूप ऑफ नर्व विच इज फॉर्म फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस एंड पोस्टीरियरली रन्स द सिंपैथेटिक चेन। अच्छा, कैरोटिड शीट जो होता है ना वो आर्टरी की साइड थिक होता है और वेन की साइड थिन होता है। क्यों? क्योंकि इसको वीनस रिटर्न को ये मेंटेन करके रखना है। ठीक है ना, तो ये हमेशा याद रखना कि आर्टरी के अराउंड तो थिक है बट वेन के अराउंड ये थिन है, टू इंक्रीज द वेनस रिटर्न अलाउ करने के लिए। अब लास्ट फेशिया दैट इज कॉल्ड द बक्कोफेरेंजियल फेशिया। बक्कोफेरेंजियल फेशिया कहाँ है? फैरिंग्स के पास। ठीक है ना, फैरिंग्स को जो सराउंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ डेलिकेट डिस्टेंसिबल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। अब जब फैरिंग्स पढ़ोगे तो उसमें ना कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं, कुछ कंस्ट्रिक्टर मसल होते हैं, जो दो तीन कंस्ट्रिक्टर होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ फैरिंग्स। तो इनको जो कवर करता है दैट फेशिया इज नोन एज बक्कोफेरेंजियल फेशिया। इसके अपार्ट एक और फेशिया होता है जो कि डीप सर्वाइकल फेशिया से ही बनता है, जिसको फेरिंगोबैसिलर फेशिया कहते हैं। वो फैरिंग्स के इनर वॉल को कवर करता है। ठीक है, ये तो आउटरली प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बक्कोफेरेंजियल फेशिया। और इनर में जो मसल्स के बीच में गैप है उनको जो फेशिया कवर करता है वो भी किससे आया है? डीप सर्वाइकल फेशिया से आया है, और उस फेशिया का नाम क्या है? फेरिंगोबैसिलर फेशिया। ठीक है, तो फैरिंग्स में आप और डिटेल में पढ़ोगे। तो ये देखो, दिस इज द सेक्शन ऑफ फैरिंग। तो बाहर में तो द पोस्टीरियरली जो फेशिया प्रेजेंट है, जो कि स्पेस ऑफ द स्कल से लेकर के ईसोफेगस तक आएगा, तो दिस इज कॉल्ड द बक्कोफेरेंजियल फेशिया। और उसके अपार्ट एक और फेशिया होता है दैट लाइज द इनर साइड, उसको भी फेरिंगोबैसिलर फेशिया कहते हैं, और ये भी किसका पार्ट है? दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। अब फैरिंग्स के आसपास में कुछ स्पेसेस होते हैं, तो कभी कभी इसको भी पूछा जाता है। तो एक तो फैरिंग्स के पीछे है जिसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोफेरेंजियल स्पेस कहते हैं, और दो साइड में स्पेस है जिसको पाराफेरेंजियल स्पेसेस कहते हैं। तो ऑल टुगेदर देयर आर 3 फेरेंजियल स्पेस, वन इज नोन एज रेट्रो। रेट्रो का मतलब सबको पता है, फैरिंग्स के पीछे जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द रेट्रोफेरेंजियल स्पेसेस, और जो फैरिंग्स के साइड में स्पेस है दैट इज कॉल्ड द पाराफेरेंजियल और द लेटरल फेरेंजियल स्पेस। पारा मतलब क्या होता है? बाय द साइड। तो साइड में जो है दैट इज द पाराफेरेंजियल स्पेस और द लेटरल फेरेंजियल स्पेसेस। अब इस डायग्राम में देखो, ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ वर्टिब्री है, ये फैरिंग्स है। फैरिंग्स को पोस्टीरियरली जो कवर करके फेशिया रखा हुआ है वो क्या है? बक्कोफेरेंजियल फेशिया है। और जो वर्टिब्री के आगे फेशिया है उसको क्या बोलते हैं? प्रीवर्टिब्रल फेशिया। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा इसको क्या बोलोगे? रेट्रोफेरेंजियल स्पेस कहोगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। और यहाँ पे जो दोनों साइड में स्पेस होगा इसको क्या बोलोगे? पारा और द लेटरल फेरेंजियल स्पेसेस। और इस प्रीवर्टिब्रल फेशिया और वर्टिब्री के बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या बोलोगे? प्रीवर्टिब्रल स्पेस। वर्टिब्री के आगे स्पेस, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीवर्टिब्रल स्पेस। ये भी दिया रहता है बुक में, इसलिए बता दिया, प्रीवर्टिब्रल स्पेस। वर्टिब्री के आगे ये स्पेस प्रीवर्टिब्रल स्पेस, बक्कोफेरेंजियल और प्रीवर्टिब्रल फेशिया के आगे यहाँ पे रेट्रोफेरेंजियल, और साइड में लेटरल और द पाराफेरेंजियल स्पेस। एक लेटरल फेरेंजियल जो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है, इसके कंटेंट क्या होते हैं? रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं, और जो फेरेंजियल प्लेक्सस ऑफ नर्व एंड वेसल्स होते हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द 3 कंटेंट्स प्रेजेंट इन द रेट्रोफेरेंजियल स्पेसेस, दैट इज रेट्रोफेरेंजियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, लूज एरियोलर टिश्यू, फेरेंजियल plexus of nerve and vessels.
अच्छा, अब देख रहे हैं यहाँ पे एक मिड लाइन फ्यूजन है बिटवीन द प्री ट्रेकियल फेशिया एंड द बक्कोफेरेंजियल फेशिया। इस फेशिया को हम एलआर फेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एलआर फेशिया। दिस एलआर फेशिया डिवाइड्स द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस इनटू टू डिफरेंट स्पेस। दिख रहा है, एक राइट में स्पेस है, एक लेफ्ट में स्पेस है ना? तो दिस इज द, एक राइट स्पेस है और एक लेफ्ट स्पेस है। तो ये किससे, एक लाइन, एक मिड लाइन में फेशिया होता है, इसका नाम क्या है? एलआर फेशिया, विच फ्यूजेस द बक्कोफेरेंजियल एज वेल एज प्रीवर्टिब्रल फेशिया। तो ये एलआर फेशिया है, दोनों साइड में। तो ये क्या किया, रेट्रोफेरेंजियल को दो डिपार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसका नाम दिया गया है स्पेस ऑफ गिलेट। क्या बोलते हैं इसको? स्पेस ऑफ गिलेट। इस पूरे स्पेस को हम रेट्रोफेरेंजियल स्पेस कहते हैं। और एलआर फेशिया इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक स्पेस और ये दो, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेस ऑफ गिलेट। ठीक है ना? तो आपको पता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये सारी फेशियस कहाँ है? सब प्रीवर्टिब्रल के आसपास है। और प्रीवर्टिब्रल कहाँ जा रहा है? नीचे पूरा इसोफेगस और यहाँ तक जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ के इन्फेक्शन थॉरेक्स में भी ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है ना? फर्स्ट जो भी रहेगा। और दूसरा कि अगर कोई सर्वाइकल वर्टिब्री में ट्यूबरकुलोसिस है तो वो आपका एंटीरियरली पुश करेगा और जो प्रीवर्टिब्रल स्पेस है वहां पे भी आएगा और वहां से ट्रिकल डाउन करके आपको नीचे भी जाएगा। ठीक है ना? अब नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज द सर्वाइकल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस कहां से बना था? C5 से बना था। उसके ऊपर कितनी बची? 4। तो ऑल दीज 4 वेंट्रल रमाई ऑफ द अपर 4 सर्वाइकल नर्व, वेंट्रल रमाई ऑफ द अपर, क्योंकि डॉर्सल रमाई क्या करता है? बैक ऑफ द स्किन और इसको सप्लाई करता है। तो जो वेंट्रल रमाई ऑफ द अपर 4 सर्वाइकल नर्व फ्यूजेस टू फॉर्म द सर्वाइकल प्लेक्सस। दैट इज कौन कौन सी? C1, C2, C3 एंड C4। इन सब के वेंट्रल रमाई एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक प्लेक्सस बनाएंगे विच इज इन कंटिन्यूएशन विद द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वाइकल प्लेक्सस बोलेंगे। और सर्वाइकल प्लेक्सस की जो भी ब्रांचेस होती हैं वो किसको सप्लाई करती है? स्किन एंड मसल्स ऑफ द नेक एज वेल एज डायफ्राम। ठीक है ना? क्योंकि फ्रेनिक नर्व कहाँ से निकलता है? ये यहीं से निकलता है, सर्वाइकल फेशिया से, सर्वाइकल प्लेक्सस से निकलता है। तो इट विल सप्लाई द स्किन एंड मसल ऑफ नेक एंड डायफ्राम। और ये किसके बीच में होगा? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड आगे रहेगा और जितनी भी नेक की मसल्स है, डीप मसल्स ऑफ नेक है, उन दोनों के बीच में ये प्लेक्सस रहता है इन कंटिन्यूएशन विद द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड फॉर्म बाय द वेंट्रल रमाई ऑफ अपर 4। है ना? तो ऊपर आगे की तरफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और पीछे ये डीप मसल्स ऑफ द नेक, इन दोनों के बीच में ये वेंट्रल रमस पास करेगी और चारों फ्यूज करके क्या बनाएगी? तो दिस इज द सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस की जो C2, C3, C4 ये तीनों क्या होती है? डिवाइड होती है एक अपर और एक लोअर पार्ट में। C1 का कोई डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ उसकी एक ही ब्रांच निकलती है। अब क्या होती है? C1 से एक निकली, वो C2 के अपर से फ्यूज करके एक लूप बनाती। प्लेक्सस का मतलब ही क्या होता है? लूप, है ना? प्लेक्सस का मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ लूप, तो इसलिए हम उसको प्लेक्सस कहते हैं। तो देयर आर 4 नर्व, C1, C2, C3 एंड C4। C1 डजंट डिवाइड, रेस्ट C2, C3, C4 ये सब डिवाइड करके एक अपर और एक लोअर बनाएगी। C1 सिंगल है कि C2 के अपर से फ्यूज करके, C2 का लोअर C3 के अपर से, C3 का लोअर C4 के अपर से, और C4 का जो लोअर है वो आपको पढ़ाई है, प्रीफिक्स्ड, है ना? वो वहां चला जाता है ब्रेकियल प्लेक्सस में। ठीक है? तो इट विल फॉर्म 3 लूप्स, 1 लूप इज प्रेजेंट एंटीरियरली एंड 2 लूप इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली। तो अब ये देखो डायग्राम में, ये C1 वर्टिब्री, C2, C3, C4, इन चारों से ही हमारा सर्वाइकल प्लेक्सस बन रहा है। C1 से एक ही निकलता है, C2 से एक अपर एक लोअर, C3 से एक अपर एक लोअर, C4 से एक अपर और लोअर तो चला गया प्रीफिक्स्ड के लिए। ठीक है ना? तो C2 और C1 ज्वाइन करता है तो जो लूप बनता है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस के, मतलब वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है लूप। बाकी 2 लूप कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। तो दिस फॉर्म अ लूप ऑफ प्लेक्सस कॉल्ड द सर्वाइकल प्लेक्सस। दिस सर्वाइकल प्लेक्सस गिव ब्रांचेस, कुछ सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं, कुछ डीप ब्रांचेस है। जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया है, 4। कौन कौन सी? लेसर ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सुप्राक्लॉविकुलर, है ना? ये चारों क्या है? सुपरफिशियल ब्रांचेस है सर्वाइकल प्लेक्सस की। बाकी इसकी डीप देती है। तो डीप ब्रांचेस सारी की सारी क्या करती है? आपकी नेक की जो डीप मसल्स है उनको सप्लाई करती है। कौन सी मसल? रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर, रेक्टस कैपिटिस लैटरलिस, लॉन्गस कैपिटिस, लॉन्गस कोलाई, फ्रेनिक नर्व जो कि डायफ्राम को सप्लाई करेगी, एक अंसा सर्विकैलिस का लूप बनाती है, इंफीरियर लूप ऑफ अंसा सर्विकैलिस। अपार्ट फ्रॉम इट, sternocleidomastoid, trapezius, levator scapulae, scalenus medius. These are all the muscles which are supplied by the
सर्वाइकल प्लेक्सस, ठीक है। रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर, रेक्टस कैपिटिस लेटरालिस, लॉन्गेस्ट कैपिटिस, लॉन्गेस्ट कोलाई, फ्रेनिक डायफ्राम को सप्लाई करेगी, इंफीरियर लूट ऑफ अंसा सर्विकैलिस, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ट्रेपेजियस, लिवेटस कैपिलिस, क्लेनस मीडियस, all 10 muscles, these are all supplied by the deeper branches of, तो ये सारी 10 क्या है, मस्कुलर ब्रांचेस है। उसके अलावा जो डीप ब्रांच होती है वो कम्युनिकेटिंग भी होती है, तो वो 2 मिनट देख लो बस। वो कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस क्या होती है, जो 12th क्रेनियल नर्व है, जो C1 और C2 का लूप है, उससे एक ब्रांच निकलती है और वो किसके साथ रन करती है, 12th क्रेनियल नर्व के साथ, दैट इज द हाइपोग्लॉसियल नर्व के साथ। वो थोड़ा दूर हाइपोग्लॉसियल के साथ चलती है, फिर बाद में अलग हो जाती है, तो उसको मेनिंजियल ब्रांच कहते हैं। जब ये हाइपोग्लॉसियल, ये दिख रहा है सबको, ये हाइपोग्लॉसियल नर्व है, दैट इज द 12th क्रेनियल नर्व। ये C1 C2 के लूप से एक ब्रांच निकली, दैट इज द कम्युनिकेटिंग ब्रांच विच विल रन विद द हाइपोग्लॉसियल नर्व एंड देन लीव इट एज अ मेनिंजियल ब्रांच। उससे एक लूप निकलती है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर रूट ऑफ अंसा सर्विकैलिस, और C2 C3 के जो लूप है उससे एक रूप निकलती है, दैट इज कॉल्ड द इंफीरियर लूप ऑफ अंसा सर्विकैलिस। ये दोनों लूप ज्वाइन करके अंसा सर्विकैलिस बनाती है, जो कि एम्बेडेड होती है इन द प्रीवर्टिब्रल और द एंटीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड शीट में एम्बेडेड होती है। तो ये लूप ऑफ नेक बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंसा सर्विकैलिस। अंसा सर्विकैलिस मैं अभी आपको नहीं बता रही, वो डिटेल में आपको ट्रायंगल्स में बताया जाएगा when we will discuss carotid triangle। बट ये बना किससे है अंसा सर्विकैलिस, कैरोटिड प्लेक्सस से ही आया है। सुपीरियर रूट उस पार्ट से आया है जो कि हाइपोग्लॉसल के साथ रन कर रही थी, और इंफीरियर रूट डायरेक्टली आया है C2 C3 से, ठीक है। तो जो सुपीरियर रूट है इसको डिसेंडेंट हाइपोग्लॉसाई भी कहते हैं, और जो C2 इंफीरियर रूट है इसको डिसेंडेंट सर्विकैलिस भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्वाइकल प्लेक्स से आया और वो हाइपोग्लॉसल से आया। तो डिसेंडेंट सुपीरियर वाले को डिसेंडेंट हाइपोग्लॉसाई और इसको डिसेंडेंट सर्विकैलिस कहते हैं। और ये सारी जो आपकी स्ट्रैप मसल्स है ना नेक की, जो भी पढ़ोगे आपने, थायरॉइड मसल्स और ये मसल्स को, ये ओमोहॉइड मसल्स को, ये सारी मसल्स को ये अंसा सर्विकैलिस से सप्लाई करती है। तो वो अभी डिटेल जब आपको ट्रायंगल पढ़ाया जाएगा, कैरोटिड शीट बेसिकली, तब आपको पढ़ा दिया जाएगा कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। थैंक यू।